dear students, welcome all. Our today's topic is speed. So let's start. Students, in our everyday life, we use the word speed. Okay, where we use the word speed? जब जल्दी स्पीड से काम करना है, स्पीड में चलना है, स्पीड कम करनी है, स्पीड बढ़ानी है, सो ये हम स्पीड ये वर्ड है हम इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो अल्टीमेटली हम क्या कह रहे हैं कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या फिर कितना स्लो वर्क कर रहा है या फिर मूव कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पीड कहते हैं. मीन्स व्हाट वी आर टेलिंग हियर, how fast or how slow a object is moving. Okay, this is the speed. So to understand the speed in detail, let's take one example. Students, in this picture you can see two cars, a red car and a yellow car. Both the cars are in stationary position, means rest position. Okay, so now both the cars have to travel from point A to point B. Here A is their initial position and B is their final position, means they have to travel from A to B, and while traveling from A to B they have to cover a distance of 20 kilometers. Okay, so now let's consider that while traveling from point A to point B, means while covering a distance of 20 kilometers, car red took 2 hours. Okay, means car red took 2 hours to complete the distance of 20 kilometers and car yellow took 4 hours to complete a distance of 20 kilometers. Okay, the distance covered by car red is 20 kilometers and time taken is 2 hours. The distance covered by yellow car is 20 kilometers and time taken is 4 hours. Now students, tell me which car would have reached to the final destination, that is point B first? Can you tell me? Yes, the car red. Okay, the car red reached the point B first. From this what we can conclude? That the speed of car red was more than the speed of car yellow. Okay, here the car red and car yellow both covered a distance of 20 kilometers, but car red covered the distance of 20 kilometers in 2 hours and car yellow covered the distance of 20 kilometers in 4 hours. Means car red was traveling with a more speed than the car yellow. When we were calculating the speed, so what all things we took into consideration? First we took the distance and second we took the time. Okay, so distance and time both are needed to calculate the speed. This speed, एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है उसे हम क्या कहेंगे? सिंपली स्पीड कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड. What is speed? Speed is total distance travelled by an object over total time taken. Okay, now let's see at what speed the red car and yellow car was travelling. Okay, so how can we calculate the speed? Total distance upon total time. So first let's calculate the speed of red car. The distance travelled by red car is 20 kilometers and the time taken was 2 hours. Okay, so 20 kilometers divided by 2 hours, that is 10 kilometers per hour. Means the red car was travelling with a speed of 10 kilometers per hour. Then let's see of yellow car. The yellow car completed a distance of 20 kilometers, but the total time taken was 4 hours. So 20 divided by 4, that is 5 kilometers per hour. So the speed of yellow car was 5 kilometers per hour. Red car was moving with a speed of 10 kilometers per hour, means 1 hour में
वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। वाइल टॉकिंग रिगार्डिंग द येलो कार, 1 आवर में येलो कार ने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। वी कैन से दैट द speed of red car is 10 kilometers per hour and speed of yellow car is 5 kilometers per hour. Okay. So, what is speed? Speed is distance over time. So, how fast or how slow an object moves is the speed. While considering the speed, we have to take into consideration the distance travelled by an object in motion. Have to consider the time an object takes to complete the distance. Okay, हमें time भी देखना पड़ेगा. Then important thing that speed is a scalar quantity. जब we are calculating the speed, we have taken into consideration only the magnitudes. सिर्फ हमने magnitude ही consider किया. That is 20 किलोमीटर distance है, 2 hours है. Okay, मीन्स हमने सिर्फ वैल्यू, ओके, मैग्नीट्यूड वी हैव ओनली कंसिडर्ड द मैग्नीट्यूड. हमने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं देखा है, मतलब कार कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ये हमने नहीं देखा, ओनली वी हैव सीन द मैग्नीट्यूड. सो दैट्स व्हाई द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. देन द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, किलोमीटर्स पर आवर, माइल्स पर आवर. ओके, कोई भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में यूज़ किया था किलोमीटर्स पर आवर. ओके, इसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, टेल मी, इज इट दैट द रेड कार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट द स्पीड ऑफ रेड कार वॉज 10 किलोमीटर्स पर आवर एंड द स्पीड ऑफ येलो कार वॉज 5 किलोमीटर्स पर आवर? इज इट पॉसिबल? नो. यस. ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल. जब when रेड कार started to come in motion, फर्स्ट उसकी स्पीड कम होगी, फिर एक पॉइंट आया होगा, फिर ज़्यादा, फिर स्पीड ब्रेकर आया, फिर कम, फिर ज़्यादा. मतलब ऐसे करके रेड कार ने पूरा 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. पहले स्लो, फिर एक पॉइंट में, फिर ज़्यादा. ओके, फिर एक पॉइंट के बाद स्पीड ब्रेकर आया, फिर से कम की, फिर उसके बाद फिर से ज़्यादा की और पॉइंट बी तक रीच हुआ. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो स्पीड थी वो क्या नहीं थी, वो कांस्टेंट नहीं थी. वो कांस्टेंट नहीं थी, वो क्या है, कम ज़्यादा हो रही है. ओके, इन द एंटायर जर्नी ऑफ द रेड कार द स्पीड वॉज नॉट कांस्टेंट, बट स्टिल वी हैव कैलकुलेटेड द स्पीड, दैट इज 10 किलोमीटर्स पर आवर. सो व्हाट इज दिस 10 किलोमीटर्स पर आवर? सो दिस स्पीड इज कॉल्ड एज द एवरेज स्पीड. इस स्पीड को हम क्या कहेंगे? इस स्पीड को हम कहेंगे एवरेज स्पीड. व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ओवर टोटल टाइम टेकन. ये क्या है? दिस इज द एवरेज स्पीड. ओके, एवरेज स्पीड total distance traveled by an object divided by total time taken is the average speed. So total distance upon total time, that means the speed which we have calculated is the average speed. मतलब entire journey में इसकी एक average speed क्या थी? रेड कार की 10 किलोमीटर्स पर आवर थी, तो येलो कार की 5 किलोमीटर्स पर आवर थी. ओके, देन फिर हमने कहा था कि वो कम ज़्यादा हो रही थी. ओके, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कम थी, पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा थी, तो वो स्पीड हमें कैसे पता चलेगी? सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हर एक व्हीकल में क्या होती है, एक आपको मीटर दिखाई देता है. ओके, लाइक दिस. सो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं. ओके, स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है? स्पीडोमीटर हमें अ पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको तो पता ही है कि हर एक व्हीकल में एक मीटर रहता है जो आपको स्पीड बताता है. ओके, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं. ओके, ये स्पीडोमीटर हमें क्या इंडिकेशन देता है? सो जो हम कह रहे थे कि एक पॉइंट पे स्पीड कम है, एक पॉइंट पे ज़्यादा है, फिर से कम है. सो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी स्पीड क्या है ये हमें कौन बताता है?
स्पीडोमीटर बताता है। ओके, जैसे ही हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो स्पीडोमीटर की रीडिंग भी इंक्रीज होती है। जैसे ही हम स्पीड रिड्यूस करते हैं स्पीडोमीटर की रीडिंग भी कम हो जाती है। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कितने 60 किलोमीटर्स पर आवर से ट्रैवल कर रहे हैं, 20 किलोमीटर्स पर आवर से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम 2 किलोमीटर्स पर आवर से ट्रैवल कर रहे हैं, ये हमें स्पीडोमीटर इंडिकेशन देता है। ओके, सो जो स्पीडोमीटर जो हमें इंडिकेशन देता है उसे हम क्या कहेंगे, उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, इंस्टंटेनियस स्पीड कहते हैं हम। ओके, उसे कहते हैं हम इंस्टंटेनियस स्पीड। उस इंस्टेंट पे जो हमें स्पीड बताता है उसे, उस इंस्टेंट पे स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है, इसलिए उसे इंस्टंटेनियस स्पीड कहेंगे। ओके, I hope that this video was helpful for you. Okay, thank you.